अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम टू वीडियो शो। चलिए जी, अब हम अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करते हैं। आप लोगों को पता है हमने इंग्लिश का जो है हमने जो है इंग्लिश का टॉपिक नंबर 4 कर लिया था और अब मैं करने लगी हूँ उसका टॉपिक नंबर 5। ठीक है, तो इस हफ्ते का काम में सिर्फ एक सब्जेक्ट है। इसके बाद जो रह गया है मेरा वो उसके टॉपिक में मैं कल लाजमी तौर पर कंप्लीट कर लूँगी, पहली फुर्सत में ही। ठीक है, तो उसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है। तो वो खैर असाइनमेंट आ गई थी ना हमारी, आप लोगों को पता, और सेशन भी था तो उसी में टाइम चला गया। आप लोगों को पता है असाइनमेंट का तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन थी, तो दिमाग में पॉइंट्स भी बहुत टाइम के बाद आते हैं ना, इसीलिए। तो आप लोग सब अगर ऐसा होता है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलते हैं हम अपने इंग्लिश की तरफ। बिज़नेस कम्युनिकेशन, यहाँ पर हम अपना टॉपिक नंबर 5 के पास चल लेते हैं, इसकी वीडियो सुन लेते हैं। पहले तो मैं इसकी वीडियो की प्लेबैक स्पीड ज़्यादा कर दूँगी। ठीक है, मुझे समझ आ जाती है, आप लोग को भी आई होप आ जाती होगी समझ। चलें जी, फिर सुनते हैं वीडियो। Welcome to Virtual University. We are having business communication. Today it's our 5th lecture. Previously we have discussed two topics such as what is communication, the importance of communication, the challenges that are being faced by people dealing with communication. Then we studied cross communication and how communicate works in an organization, within an organization and outside an organization. Then we studied the process of communication. Now today we are going to discuss another topic related to communication, that is the barriers of communication. I mean, you went through in the previous lecture all the 6 components of communication, from context to feedback, and at the end of that lecture I told you that even if we have gone through these 6 components, we are not sure to communicate successfully or effectively because there are always some barriers of one type or another type. So today we are going to discuss these barriers. Different people name these barriers differently. Some say fall off, some say distortion in communication, some say noise in communication. We can say miscommunication, the problem of miscommunication, we can say barriers or whatever. They all mean the same. So let's say that why this miscommunication happens or why there are always barriers. They have to be overcome by the good communicators. इसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि no two people in the world are alike. यानी दो लोग दुनिया में एक जैसे नहीं हैं. Whether they belong to same family, they are brothers, brother and sister, father and son, they are friends, they live in the same culture, in the same country, in the same subcontinent or whatever. They are not alike. This is the hard and fast reality. ये दो लोग जो हैं वो चाहे एक ही जगह पे उनको ट्रेन किया गया हो, वो एक तरह से होता है. For example, all of you listening to this lecture are going to have their own understanding. Why? Because you are not alike. यानी आप एक क्लास में सब बैठे हुए होंगे, लेकिन आप मेरी गुफ्तगू जो है उसको डिफरेंटली कंसीव कर रहे होंगे. इसके की क्या वजूहत है, इन्हीं को आज हमने डिस्कस करना है. उन बैरियर्स को डिस्कस करना है कि वो कौन कौन से बैरियर्स हैं. फॉर एग्जांपल फिजिकल बैरियर भी हो सकते हैं, साइकोलॉजिकल बैरियर भी हो सकते हैं, सिमेंटिक बैरियर भी हो सकते हैं, और फिर बाज़ दफ़ा हमारी अपनी पर्सनालिटी जिसमें हमारी वैल्यूज़ हैं, हमारा एटीट्यूड है और मुख्तलिफ चीज़ें हैं, वो भी बैरियर के तौर पे सामने आती हैं और वो भी किसी कम्युनिकेशन एक्ट को पूरी तरह कंप्लीट होने में, इफेक्टिव होने में हायल होती हैं. सो लेट्स सी दैट what are these barriers of communication and how we can understand this topic very well. We say people in the world are not exactly alike. Cultures or countries are not the same. These differences, however, can cause problems in conveying your meaning. Each person's mind is different from others. As a result, message standards meaning and the receiver's responses are affected by many factors. So, जैसे हमने अभी देखा कि दो कंट्री जो हैं वो बराबर नहीं हैं, दो कल्चर जो हैं वो बराबर नहीं हैं, और इसी तरह एक ही जगह पे रहने वाले दो लोग जो हैं वो बराबर नहीं हो सकते. तो इन वजूहात की बिना पे मिसकम्युनिकेशन जो है वो वजूद में आती है. मिसाल के तौर पे आप जब कुछ चीज़ कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो उसकी एक खास रिस्पांस आपके जहन में होती है कि जब आप कुछ चीज़ कम्युनिकेट करेंगे तो उसके नतीजे में कोई खास रिस्पांस या रिएक्शन जो है वो पैदा होगा. लेकिन वो खास रिएक्शन या रिस्पांस पैदा होने के लिए ज़रूरी है कि वो बात जैसे आप समझाना चाह रहे हैं वो आपका रिसीवर जो है या रिसिपिएंट जो है वो भी उसको वैसे समझे. इस बात को हासिल करने के लिए, अपने मकसद को इफेक्टिवली अचीव करने के लिए हमें बहुत सी बातों का ख्याल रखना पड़ता है. हमें उन तमाम बैरियर्स को, उस तमाम रुकावट को जहन में रख के अपनी बात को बेहतर से बेहतर करना पड़ता है ताकि हमारी बात जो है वो वही नतीजा हासिल करें जो कि हम चाहते हैं. इसमें सबसे पहले जो है वो हम जिक्र करेंगे सिमेंटिक बैरियर्स का. सिमेंटिक बैरियर्स क्या होते हैं? सिमेंटिक, जैसे कि जब हमने पहला लेक्चर किया था तो उसमें मैंने जिक्र किया था कि एक जो अच्छा कम्युनिकेटर है उसको से जो डिसिप्लिन्स हैं, जैसे साइकोलॉजी है, जैसे लैंग्वेज है, जैसे लिंग्विस्टिक है, इनमें से बहुत सी बातों को उसको मालूम होना चाहिए. तो आज हम बिगिन करते हैं कि सबसे ज़्यादा बात ज़रूरी जो है किसी भी बेहतर कम्युनिकेटर को इन बैरियर्स को पार करने के लिए, इन बैरियर्स को ओवरकम करने के लिए उसको ये जानना ज़रूरी है कि लफ्ज़ और लफ्ज़ का लफ्ज़ जिस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है उसका आपस में क्या रिश्ता है. यानी सिमेंटिक्स को हमें समझने की ज़रूरत है. हम जब भी अपनी को बात करते हैं
तो हम सिंबल इस्तेमाल करते हैं, जैसे हम वर्ड कह रहे हैं। इस वक्त में जो आइडियाज़ आ रहे हैं उन आइडियाज़ को मैं सिंबल्स के ज़रिए यानी वर्ड्स के ज़रिए आप तक कन्वे करने की कोशिश कर रहा हूँ। और मेरे ये तमाम वर्ड जो हैं वो किसी रियलिटी को, जिसे हम रेफरेंट कह सकते हैं, उसको बयान कर रहे हैं। इसको समझने की एक आसान सी बात यह है कि मिसाल के तौर पर मैं एक लफ्ज़ बोलता हूँ टेबल। ये टेबल मैंने एक खास आइडिया को बयान करने के लिए बोला है, और ये लफ्ज़ जो मेरा टेबल है ये एक सिंबल की तरह है, ये वर्ड एक सिंबल की तरह है। लेकिन ये सिंबल जो है ये आउटर वर्ड में किसी रियलिटी को बयान कर रहा है, और जैसे ही लफ्ज़ जो है वो मैं टेबल बोलता हूँ तो आपके ज़हन में उस टेबल का एक रेफरेंस जो है वो ज़हन में आ जाता है, और मेरी बात जो है वो आपकी समझ में आ जाती है। लेकिन इसकी जगह अगर मैं टेबल की जगह कोई और लफ्ज़ बोलूँ, किसी दूसरी ज़ुबान का लफ्ज़ बोलूँ, तो आपको समझ उसका रेफरेंस जो है आउटर वर्ड, जो रियलिटी है वो आपकी समझ में नहीं आएगी। तो इसके नतीजे में मिसकम्युनिकेशन जो है वो पैदा हो जाएगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम जो लफ्ज़ इस्तेमाल करें उन लफ्ज़ के रेफरेंस जो है वो मेरे और मेरा जो सुनने वाला है, मेरा जो रिसीवर है, जो मेरे मैसेज का रेसिपिएंट है, चाहे वो रिटन मैसेज का रेसिपिएंट है या वो किसी ओरल मैसेज का रेसिपिएंट है, उसके दरमियान एक्सपीरियंस जो है वो कॉमन एक्सपीरियंस होना चाहिए। जितना कॉमन एक्सपीरियंस होगा लफ्ज़ का और रेफरेंस का दरमियान और इसी के दरमियान की कनेक्शन को बेहतर बनाया जा सकता है। और जितना लेस एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करेंगे मैसेज सेंडर और मैसेज रिसीवर, उतनी ही ज़्यादा मिसकम्युनिकेशन होने के इम्कानात हैं। इस चीज़ को कम करने के लिए हमें ज़रूरी है लफ्ज़ हम इस्तेमाल करें तो लफ्ज़ के इस्तेमाल करते वक्त लफ्ज़ के जो मायने हैं या मुख्तलिफ उसका जो इस्तेमालात हैं या यूजेजेस हैं उनको ज़रूर मद्देनजर रखें। मिसाल के तौर पे आप सब अपनी ज़िंदगी में बेशुमार औकात डिक्शनरी जो है वो देखते हैं किसी लफ्ज़ का मीनिंग तय करने के लिए। जब आप डिक्शनरी देखते हैं तो डिक्शनरी जो है आपको मिसाल कोई इंग्लिश डिक्शनरी जो है वो पकड़ लेते हैं, और उसमें आप जब उस वर्ड तक पहुँचते हैं तो उस वर्ड का मीनिंग आप देखते हैं। उस वर्ड का मीनिंग जो है सिर्फ एक नहीं होता, बल्कि अक्सर औक़ात ये होता है कि अल्फाज के एक से ज़्यादा मीनिंग दिए हुए होते हैं। वो मीनिंग जो है वो लफ्ज़ के मुख्तलिफ लेवल्स को, मुख्तलिफ हवालों को ज़ाहिर करते हैं, और उनको अंडरस्टैंड करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। जैसे आप एक लफ्ज़ रन है, अगर आप डिक्शनरी में देखना चाहेंगे तो कोई भी डिक्शनरी उठा लेंगे तो आपको इस लफ्ज़ के बहुत से मीनिंग जो है वो देखने को मिलेंगे। एक बात तो यह है कि ये लफ्ज़ एज वर्ब अगर आप देख रहे हैं तो उसमें भी बेशुमार मीनिंग है, एज नाउन है देख रहे हैं तो उसमें भी बेशुमार मीनिंग है, और अगर एज एडजेक्टिव देख रहे हैं तो उसमें भी बहुत बेशुमार मीनिंग है। तो एक लफ्ज़ के बेशुमार मीनिंग है। अब आपका जो सुनने वाला है उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो मीनिंग आप करने का है वो आपके और आपके रेसिपिएंट के दरमियान कॉमन एक्सपीरियंस की बिना पे हो कि जब आप उस लफ्ज़ को इस्तेमाल करें तो वो लफ्ज़ जो है वो सीधा समझ में आना चाहिए। तो लफ्ज़ को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप ये तय करें कि लफ्ज़ आप किस एतबार से बोल रहे हैं। मैं इसमें ज़्यादा लिंग्विस्टिक की बहस नहीं करूँगा, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि दो एक तरफ से देखें कि अल्फाज जो हैं वो किस तरह इस्तेमाल किए जाते हैं। मिसाल के तौर पे डिनोटेशन है, लफ्ज़ जो है वो डिनोटेटिवली इस्तेमाल किया जाता है। देखते हैं कि डिनोटेटिवली वर्ड को हम कैसे जान सकते हैं। हम ये कहते हैं कि अ डिनोटेशन इज यूजुअली द डिक्शनरी डेफिनेशन ऑफ अ वर्ड। डिनोटेटिव मीनिंग नेम्स ऑब्जेक्ट, पीपल और इवेंट विदाउट इंडिकेटिंग पॉजिटिव और नेगेटिव क्वालिटीज। Such words as car, desk, book, house, and water convey denotative meanings. The receiver has a similar understanding of the thing in which the word is used. So, आपने देखा कि denotative जब लफ्ज़ जो है denotatively इस्तेमाल हुआ होता है तो उस वक्त वो अपने डिक्शनरी मीनिंग में होता है, और डिक्शनरी मीनिंग में मतलब ये है कि इतने इब्तदाई मीनिंग में उस वक्त लफ्ज़ जो है वो आपके और आपके जो मुखातिब है उसके दरमियान कॉमन होता है। जैसे अगर आप लफ्ज़ कार बोलें तो इसको समझने में किसी को कोई प्रॉब्लम जो है वो नहीं होगी। अगर लफ्ज़ आप बोलते हैं टेबल, तो टेबल को अंडरस्टैंड करने में आपके और आपके मुखातिब के दरमियान कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो लफ्ज़ जब डिनोटेटिवली इस्तेमाल किया जाएगा तो वो लफ्ज़ जो है बड़ी बाआसानी समझा जा सकता है। लेकिन हम सिर्फ लफ्ज़ को डिनोटेटिवली ही इस्तेमाल नहीं करते। ज़ुबान जो है उसका सबसे खूबसूरत पहलू उसकी सजेस्टिवनेस है, यानी लफ्ज़ को इस तरह इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक डॉक्टर जो है, अगर डॉक्टर को बहुत सादा अल्फाज में डिनोटेटिवली एक्सप्लेन करना हो, द पर्सन हू ट्रीट्स अ सिक पर्सन, यानी कैसा शख्स जो किसी बीमार आदमी का इलाज करता है, और ये वो मीनिंग है जो हर एक समझ आएगा। लेकिन मैं ये कहूँ कि अ सर्टन थिंग इज़ द डॉक्टर ऑफ अ कार। अब इधर मैंने जो लफ्ज़ डॉक्टर इस्तेमाल किया, इसको मेरा मुखातिब जो है उसको समझने की ज़रूरत होगी कि इधर लफ्ज़ डॉक्टर जो है वो मैंने किस मीनिंग में इस्तेमाल किया है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जब हम लफ्ज़ को सुने या लफ्ज़ को इस्तेमाल करें तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम लफ्ज़ को किस एतबार से इस्तेमाल करते हैं। तो याद रखिए कि जब भी हम वर्ड को डिनोटेटिवली उसके डिक्शनरी मीनिंग में इस्तेमाल कर रहे होंगे, उस मीनिंग में कि जो मीनिंग दो मैसेज सेंडर और मैसेज रिसीवर के दरमियान कॉमन होगा, तो उस वक्त हम लफ्ज़ को डिनोटेटिवली इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि हम लफ्ज़ को हमेशा डिनोटेटिवली इस्तेमाल ही नहीं करते, बल्कि हम लफ्ज़ को कनोटेटिवली भी इस्तेमाल करते हैं। तो व्हाट इज़ कनोटेशन? लेट्स लुक एट इट। A connotation is an implication of a word or a suggestion, separate from the usual definition. Some words have connotative meaning, that is qualitative judgment or personal reaction. The word man is denotative. Father, prophet, brother are connotative. Some words have positive connotation in one context and negative meaning in another. For example, slim girl and slim chances. So जब हम किसी word को किसी खास मफहूम के लिए इस्तेमाल कर रहे हो तो उस वक्त हम connotation meaning में चले जाते हैं। Connotation meaning में जैसे कि आपने देखा कि denotative जो है word man जो है ये denotative है, लेकिन word father, अब word prophet, word कोई ऐसा और लफ्ज़ के जिसमें मेल जेंडर जो है वो तो पाया जाए, लेकिन उसके अलावा कोई तो खास मतलब दी मीनिंग भी मुराद ले तो उसको हम कॉनोटेटिव जो है इस्तेमाल किया। इसी तरह हाउस जो है वो लफ्ज़ डिनोटेटिव है, डिक्शनरी मीनिंग है, लेकिन अगर आप बंगलो बोल रहे हैं, विला बोल रहे हैं, तो ये सारे कॉनोटेटिव है, इनसे आप खास चीज़ जो है वो मुराद ले रहे होते हैं। इसी तरह कई ऐसे लफ्ज़ हैं जो एक कॉन्टेक्स्ट में एक मीनिंग देते हैं और वही लफ्ज़ जो है वो दूसरे कॉन्टेक्स्ट में दूसरे मीनिंग देते हैं। मिसाल के तौर पर लफ्ज़ प्रॉफिट है, प्रॉफिट का मतलब मुनाफा है। प्रॉफिट जो है वो प्रॉफिट लफ्ज़ जो है वो एक सेलर के लिए, एक मैन्युफैक्चरर के लिए, एक किसी चीज़ को बेचने वाले के लिए एक मुख्तलिफ मफहूम रखता है, लेकिन वो प्रॉफिट जो है वो कंज्यूमर के लिए
यानी खरीदार के लिए एक डिफरेंट मफहूम रखता है। तो लफ्ज़ अपने साथ अपने मफहूम लेके चलते हैं, तो इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि हम ये अंडरस्टैंड करें कि लफ्ज़ जो है वो किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह लफ्ज़ों का इस्तेमाल में बाज़ ये भी ख्याल रखना पड़ता है कि कौन सा लफ्ज़ जो है वो किस वक्त इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी बात किस एतबार से हम कह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी हैव टू एक्सप्लेन समबडी दैट सम नियर और डियर रिलेटिव हैज़ डाइड, तो इसको हम आमतौर पे थोड़ा सा कहेंगे कि कोई ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल करें जो इस वाक़े की शिद्दत को कम करते, यानी जब हम कहेंगे एक्सपायर्ड है या पास्ट अवे है, जैसे उर्दू में हम किसी बड़ी हस्ती के लिए बोलते हैं रहलत फरमा गए हैं, तो ये लफ्ज़ का जो किसी लफ्ज़ के एक मायने में जो सख्ती है वो हम कम कर देते हैं किसी दूसरे लफ्ज़ उसके हम माने दूसरे लफ्ज़ को इस्तेमाल करके जिसमें वो सख्ती ना हो बल्कि कोई सजेस्टिवनेस जो है वो पाई जाए। तो अल्फाज को इस्तेमाल करना जो है ये सही तरीके से इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है ताकि हम जो सेमेंटिक बैरियर जो है उसको कम से कम कर सकें। तो मिसकंसेप्शन को दूर करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि जब हम लफ्ज़ इस्तेमाल करें तो लफ्ज़ का ख्याल रखें, क्योंकि लफ्ज़ जो है उसके वो हर एक लफ्ज़ जो है उसका एक खास कन्वेंशन होता है, यानी दूसरे अल्फाज में हम कह सकते हैं कि कन्वेंशन ऑफ मीनिंग जो है इसका हमें ख्याल रखना चाहिए अगर हम मिसकम्युनिकेशन से बचना चाहते हैं। इसी तरह बाज़ एक्रोनिम्स हम यूज़ करते हैं फीफो और इस तरह के और फर्स्ट कम फर्स्ट गो और बेशुमार एक्रोनिम है जो जैसे लेज़र है, इस तरह के और तो ये वो है जो एक खास फील्ड में बहुत अच्छी तरह समझे जाते हैं लेकिन दूसरी फील्ड में वो नहीं समझे जाते। तो जब हम कम्युनिकेट कर रहे हो तो इस बात का ख्याल रखें कि हमारा कौन सा लफ्ज़ जो है वो हमारे रेसिपिएंट के लिए समझ में आने वाला है और कौन सा लफ्ज़ जो है वो हमारे रेसिपिएंट की समझ में नहीं आएगा, क्योंकि कन्वेंशन ऑफ मीनिंग जो है दे डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एज दे डिफर फ्रॉम वन कंट्री टू कंट्री और कल्चर टू कल्चर। इसके बाद बात यही नहीं खत्म हो जाती बल्कि बैरियर्स को कम करने के लिए हमें आगे भी देखना पड़ता है कि किन किन चीज़ों का हमें ख्याल रखना है। ऐसी एक दूसरी चीज़ जो है वो फिजिकल बैरियर है, यानी फिजिकल बैरियर से मतलब बाज़ दफ़ा कम्युनिकेशन के रास्ते में कोई ऐसी चीज़ हाइल हो जाती है। यहाँ मैं कम्युनिकेशन जब इस्तेमाल कर रहा हूँ तो मेरी मुराद यह है कि बोथ राइटिंग एंड स्पीकिंग ओरल और रिटन कम्युनिकेशन, तो इसके रास्ते में कोई ऐसी फिजिकल चीज़ जो है वो हाइल हो जाती है जो कि बैरियर के तौर पर मिसकम्युनिकेशन का बायस बन जाती है। तो हम कहते हैं कि कम्युनिकेशन डज नॉट कंसिस्ट ऑफ वर्ड्स अलोन, अनदर सेट ऑफ बैरियर इज कॉज्ड बाय योर ओन फिजिकल अपीयरेंस, योर ऑडियंस और द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट और द प्रेजेंटेशन। Your ideas, however good and however skillfully imparted, are at the mercy of various potential physical barrier। यानी कम्युनिकेशन जो है वो सिर्फ अल्फाज ही नहीं है बल्कि इसमें कई एक बैरियर्स हैं और उनमें यह है कि आप कितनी भी कोशिश कर लें, कितनी भी मेहनत के साथ अपनी बात को आप बयान कर जाए, तब भी एहतमाल रहता है कि कई एक बैरियर जो है हो सकते हैं जिनको हम फिजिकल बैरियर के तहत इस वक्त फेस कर रहे हैं। तो पहले हम देखते हैं कि राइटिंग में कौन कौन से बैरियर जो हैं वो हमारे लिए प्रॉब्लम का बायस बनते हैं। We can say that there is a whole barrage of possible physical barriers such as jammed or jagged margins, fingerprint or smudges, unclear photocopies, unreadable word processor printout, water, coffee or tea spots, etc. यानी आपने एक लेटर है, अगर आपको एक लेटर मिले, ऐसा लेटर मिले कि उसके ऊपर वो नहीं सही मार्जिन जो है वो नहीं है, तो ये आप उस मैसेज को रिसीव करने में आपके लिए एक बैरियर के तौर पे काम कर रहा होगा। इसी तरह अगर टाइपिंग जो है वो या वर्ड प्रोसेसिंग यानी कंप्यूटर से जो प्रिंट आउट्स निकले हुए हैं वो प्रिंट आउट्स बड़े लाइट हैं, वो सही तरह पढ़े नहीं जा रहे, तो तब भी एक बैरियर का बायस बनेगा। इसी तरह अगर आपको एक ऐसा लेटर मिले जिस लेटर के ऊपर लेटर को साइन करने के बाद लिफाफे में डालने से पहले उसमें किसी वो कोई कॉफ़ी का या कोई चाय का या कोई पानी का स्पॉट रह गया, इस तरह की और बेशुमार चीज़ें जो है वो हो सकती हैं। या मिसाल के तौर पर वन लेटर वाज डिस्पैच्ड, तो वाइल ड्यूरिंग इट्स पोस्ट करने के दौरान उसमें कि कहीं पोस्टमैन जो है वो बारिश में हो गया और वो लेटर जो है गॉट बैड और उसके नतीजे में आप कई चीज़ें जो है वो उसमें से निकल गई, तो इस तरह के फिजिकल बैरियर जो है वो राइटिंग में आ सकते हैं। इसी तरह बाद लोग टाइप करते वक्त कोई स्पेलिंग जो है वो ठीक तौर पर ना लिखें, इन चीज़ों को हम बाद में भी डिस्कस करेंगे। तो ये फिजिकल बैरियर के तौर पर राइटिंग में हमें ये प्रॉब्लम जो है वो आ सकती हैं कि जो कम्युनिकेशन को सही तरह नहीं होने देंगी और जो मिसकम्युनिकेशन का बायस बनेगी। इसी तरह हमारे पास फिजिकल बैरियर में फॉर स्पीकिंग अगर हम बात कर रहे हैं, अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो एकदम जो है वो बाइक से कोई बहुत बड़ी लॉरी जो बस गुजरे और वो उसको फॉरन जो है वो हॉर्न करे, तो आप मेरी बात को सुनने से कासे हो जाएंगे, तो ये फिजिकल बैरियर के ज़िम्मे में आएगा कि उस पर कोई ऐसे मेरी गुफ्तगू को रोकने के लिए कोई ऐसी बात हुई है जिसने आपको मेरा पैगाम मेरी बात जो है पहुंचने नहीं दी। तो इसी तरह फिजिकल बैरियर्स के में समटाइम मम्बलिंग आप करते हैं, यानी आप तो बात जो है उसको पूरी तरह बयान नहीं करते, वो से सुनने वाला सुन नहीं पाता, आप अपने मुंह में क्या पाते हैं। इसी तरह नॉट एनंसिएटिंग, स्पीकिंग टू क्विकली, नॉइसेज, इसी तरह हिसिंग वेंटिलेशन इन अ रूम, ब्लोइंग एयर कंडीशनर, रिंगिंग टेलीफोन, स्लैमिंग डोर, ये सारी चीज़ें जो है वो फिजिकल बैरियर का बनती हैं कि आप बात कर रहे हैं तो एकदम किसी ने डोर को धमाके के साथ बैंग किया खोला, तो आपको बात जो है दूसरे आदमी को आपकी बात समझ नहीं आएगी या आपको दूसरे आदमी की बात जो है वो समझ में नहीं आएगी। इसी तरह कोई आप बात कर रहे हैं तो कोई आदमी जो है वो टाइप कर रहा है तो आवाज़ ठीक तरह नहीं आ रही है, आप बात कर रहे हैं तो टेलीफोन की रिंग जो है वो इतनी होती है कि अपनी बात जो है वो दूसरा सुनने से या आप दूसरे की बात को सुनने से कास रहे हैं। तो ये फिजिकल बैरियर जो है ये भी मिसकम्युनिकेशन का एक बहुत बड़ा बायस बनते हैं कि जिससे कम्युनिकेशन जो है वो ठीक नहीं हो सकती। मिसाल के तौर पर आप एक प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं और प्रेजेंटेशन देते हुए आपने आपका माइक जो है वो ठीक वर्क नहीं कर रहा, कि जो आवाज़ है वो ठीक ऑडियंस को नहीं पहुँच पाएगी, इसके नतीजे में फिजिकल बैरियर जो है आपकी बात को मिसकम्युनिकेट जो है वो करेगा, यानी कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा, वो नतीजा जो आप लेना उस कम्युनिकेशन से लेना चाह रहे हैं वो आप नहीं ले पाएंगे। फिजिकल बैरियर के बाद अगली चीज़ जो है वो साइकोलॉजिकल बैरियर है। Because of the changing world, everyone has his own concept of reality. Our sensory perceptions such as touch, sight, hearing, smell, and taste are limited, and each person's mental filter is unique. In our daily interaction with others, we make various abstractions and inferences and evaluations of the world around us. तो जैसे मैं कह रहा था कि दुनिया जो है वो हर वक्त जो है वो उसमें एक तब्दीली है, तो चेंज इज गोइंग स्टेबिलिटी, हर वक्त जो है वो तब्दीली वाक़या हो रही है। तो इस तब्दील होती हुई दुनिया में हर वक्त इंसानों के जो परसेप्शन हैं वो भी तब्दील हो रहे हैं, हमारे सेंसरी कॉन्सेप्ट जो है वो भी तब्दील हो रहे हैं। यानी एक सोसाइटी में
जो सेंसरी टचेज हैं उनका एक खास कॉन्सेप्ट है, तो दूसरी सोसाइटी में एक दूसरा कॉन्सेप्ट है। इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे बहुत तफसील के साथ अपने अगले लेक्चर में, लेकिन ये बात आप इत्तेफाक करेंगे कि हमारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं इन तमाम हवाले से वो बिल्कुल डिफरेंट है। यानी वही बात कि वी हैव ऑल डिफरेंट मेंटल फिल्टर, हम सबके मेंटल फिल्टर जो है वो डिफरेंट है। तो इसके नतीजे में हमारे यहाँ मुख्तलिफ बातें जो है वो पैदा होती हैं। हमारा हकीकत का तसव्वुर जो है वो एक दूसरे से हमेशा मुख्तलिफ होता है। इस तरह कभी-कभी इमोशनल ब्लॉक्स जो हैं वो भी आ जाते हैं। समटाइम वी फील दैट वी आर इमोशनली ब्लॉक्ड। मिसाल के तौर पे अगर आपको एक अपनी बड़ी ही मेजर प्रेजेंटेशन जो है वो देनी है, जिसके ऊपर आपकी कामयाबी का इंतज़ार है, या जिसके नतीजे में आपको कोई क्रिटिसिज्म जो है, कोई तनकीद जो है वो बर्दाश्त करनी पड़ेगी, तो उस बात को बयान करते वक्त हम इमोशनली ब्लॉक होंगे। याद रखें कि हमारे अंदर दो चीज़ें हैं। लिंग्विस्टिकली हमारे अंदर किसी बात को कहने को परफॉर्म करने की सलाहियत जो है वो मुख्तलिफ है, जितनी कि हमारे अंदर कॉम्पिटेंसी होती है किसी बात के बारे में। यानी हम किसी बात को जानते हैं कि वो बात जो है वो क्या है और उसको किस तरह बयान किया जाता है, लेकिन लाजमी नहीं है कि उस बात को हम किसी खास मौके पे बयान भी कर पाएँ। जैसे अगर आप अपने कोलीग के साथ, अपने पीयर्स के साथ किसी एक बात डिस्कस करते हैं, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम जो है वो डिस्कस कर रहे हैं, तो उसमें आप पूरी तरह पार्टिसिपेट जो है वो कर रहे हैं। लेकिन वही बात जब आप अपने सीनियर्स के साथ डिस्कस कर रहे होंगे तो हो सकता है कि आप अपने आप को इमोशनली ब्लॉक पाएँ। तो साइकोलॉजिकल बैरियर्स में एक तो इमोशनली ब्लॉक हम हो जाते हैं, जिसके नतीजे में हम अपनी बात को नहीं बयान कर पाते। इस तरह हमारा जो परसेप्शन ऑफ रियलिटी है वो भी डिफरेंट हो जाता है। जैसे किसी चीज़ के बारे में हम जब गुफ्तगू कर रहे होते हैं तो उस चीज़ में से कुछ चीज़ें हम चुन लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं, और किस चीज़ें जो है वो हम रख लेते हैं। तो इसके और जो मुख्तलिफ फीचर्स हैं वो देखते हैं। यानी परसेप्शन ऑफ रियलिटी जो है उसका क्या कॉन्सेप्ट है। ऑब्वियसली एक शख्स का दूसरे शख्स के साथ दूसरे शख्स के हवाले से बिल्कुल डिफरेंट कॉन्सेप्ट जो होगा। इनमें हम एब्स्ट्रैक्शन जो है वो डिस्कस करते हैं परसेप्शन ऑफ रियलिटी के हवाले से। परसेप्शन ऑफ रियलिटी के हवाले से हम इन्फ्रेंसेस जो है वो डिस्कस करते हैं। तो देखते हैं कि एब्स्ट्रैक्टिंग या सिलेक्टिंग क्या होती है। हम एब्स्ट्रैक्टिंग को डिस्कस कर सकते हैं कि सेलेक्टिंग सम डिटेल्स एंड ओमिटिंग अदर इज अ प्रोसेस कॉल्ड एब्स्ट्रैक्टिंग। यानी हम जब किसी गुफ्तगू को बयान कर रहे होते हैं तो उस वक्त हमारे पीछे बहुत सी बातें होती हैं, लेकिन उनमें से कुछ जो है वो हम चुन लेते हैं, जिनको हम बयान कर देते हैं, और कुछ जो है वो हम रख लेते हैं। तो जब हम ये अमल कर रहे होते हैं तो उस वक्त हम एब्स्ट्रैक्टिंग कर रहे होते हैं या सिलेक्टिंग जो है वो कर रहे होते हैं। और इस चीज़ का ताल्लुक कि हम किन बातों को बयान करना है और किन बातों को बयान नहीं करना, इसका ताल्लुक हमारे परसेप्शन ऑफ रियलिटी से है। जैसे कोई किताब जो है वो लिखी जाती है, जो आप कोई भी आपकी अपनी किताब ले लें तो उस किताब के राइटर के पास बहुत सा मवाद होगा, जिनमें से उन्होंने कुछ मवाद जो है वो लिया और बाकी बहुत सा मवाद जो है उन्होंने रख दिया। तो ये बेसिकली प्रोसेस है सिलेक्टिंग समथिंग एंड ओमिटिंग और अवॉइडिंग समथिंग अदर, ताकि जो बात आप किसी को बताना चाहते हैं वो आप वही बात ही दूसरों को बताएं। तो जब भी आपने कोई कम्युनिकेशन जो है वो करनी होगी, चाहे राइटिंग में करें या स्पीकिंग में करें, तो आपके पास बेशुमार बातें जो है वो होंगी, लेकिन आप सिर्फ उनमें से वही बातें चुनेंगे कि जो बातें आप चाहते हैं कि आप रिसीवर या रिसिपिएंट जो है उनको समझे। सो differences in abstracting take place not only when person describe event but also when they describe people and object। यानी ये इख्तलाफात सिर्फ उसी वक्त पैदा नहीं होते कि जब आप लोगों को बयान करते हैं, बल्कि चीज़ों को बयान करते वक्त भी होते हैं। जैसे एक जर्नलिस्ट है, जर्नलिस्ट को रिपोर्टिंग करनी है, तो अब रिपोर्टिंग करते वक्त उसने बेसिकली बहुत सी चीज़ें, वहाँ वो किसी इवेंट को ऑब्जर्व कर रहा है, उस इवेंट में बहुत सी चीज़ों को वो देख रहा है, लेकिन उसमें से बहुत मुख्तसर सी चीज़ें जो हैं वो उसको वो पिक करेगा और पिक करके वो उसको रिपोर्ट करेगा। तो ये एब्स्ट्रैक्टिंग है। लेकिन एब्स्ट्रैक्टिंग जो है इसमें एक दूसरा इस्तेमाल जो है वो ये है कि जो आदमी एब्स्ट्रैक्टिंग कर रहा है उसकी अपना परसेप्शन ऑफ रियलिटी उस वाक़े के हवाले से क्या है, तो इस वजह से ये एहतमाल है, ये इम्कान है कि वो अपनी बात में कोई स्लांटिंग स्टेटमेंट दे दे कि जिसके नतीजे में गुफ्तगू जो है वो उसके अपने परसेप्शन को शो करने वाली हो जाए। यानी हकीकत में फैक्ट्स को नरेट करते वक्त अगर पर्सनल बाइसेस या पर्सनल वेम्स, पर्सनल लाइक्स एंड डिसलाइक जो है वो पैदा हो गई हैं, तो इसके नतीजे में हमारी जो स्टेटमेंट है उसके स्लांटेड होने का एहतमाल है। और स्लांटिंग स्टेटमेंट जो है वो एब्स्ट्रैक्टिंग की एक बैरियर है जो किसी बात को मिसकम्युनिकेट करने का बाइस बनती है। तो हमेशा ये कोशिश करें कि जब आप रिपोर्टिंग करते हो तो यू गॉट टू बी ऑब्जेक्टिव। जब भी आप कोई बात कर रहे होते हैं तो आपको जकरी बात हकीकत में या जाहिर में क्या है उसको उसी तरह बयान किया जाए। अगर आप अपनी बात को सब्जेक्टिवली बयान कर देंगे तो इसका मतलब यह है कि आप अपनी बात को दूसरे तक सही तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने अपने पर्सनल ओपिनियन को, अपनी पर्सनल पर्सनैलिटी को या अपने परसेप्शन को बात के दरमियान शामिल कर दिया, तो जिसके नतीजे में गुफ्तगू जो है वो ठीक तरह से कम्युनिकेट नहीं हो पाएगी। इसी तरह एब्स्ट्रैक्टिंग के बाद हमारे पास इन्फ्रेंसेस जो है, इन्फ्रेंसेस बहुत ज़रूरी है। जिस तरह एब्स्ट्रैक्टिंग जो है वो एक ज़रूरी चीज़ है हमारी गुफ्तगू में, हमारी राइटिंग में, जब हम हर वक्त हम में से हर कोई कर रहा होता है, इसी तरह इन्फ्रेंसेस जो है वो भी हैं। इन्फ्रेंसेस जो है दीज आर कंक्लूजन, ये वो कंक्लूजन है मेड बाय रीजनिंग फ्रॉम एविडेंस, जो कि हम रीजनिंग से करते हैं। We make assumption and draw conclusion even though we are not able to immediately verify the evidence. Some inferences are both necessary and desirable. Others are risky, even dangerous. यानी हम में से हर कोई जो है वो हर वक्त मुख्तलिफ चीज़ों को लेता है और उनमें से नताइज निकाल रहा होता है, और लेकिन कभी कभी ये इन्फ्रेंसेस जो हैं वो डेंजरस भी हो जाते हैं। तो इन्फ्रेंसेस जो है ये भी, इनमें से कौन किस बात को लेके उसमें से हम क्या इन्फर कर रहे हैं, ये भी हमारी परसेप्शन ऑफ रियलिटी जो है यही डिटरमिन करेगी कि हम क्या चीज़ में से क्या चीज़ इन्फर कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर जब आपने कोई लेटर जो है वो पोस्ट करना है, तो ये ज़रूरी है कि आप इस बात को इन्फर करें कि वो लेटर जो है वो अपने रिसिपिएंट तक पहुंच जाएगा। अगर आपने ये ना इन्फर किया तो इसके नतीजे में आप इस काम को नहीं कर पाएंगे। तो हम कहते हैं कि इन्फ्रेंसेस आर नेसेसरी। फॉर एग्जांपल, व्हेन वी रीच अ फॉरेन कंट्री वी आर श्योर दैट वी विल बी ट्रीटेड पोलाइटली। व्हेन वी पोस्ट अ लेटर वी इन्फर दैट इट विल रीच इट्स डेस्टिनेशन। यानी जब हम लेटर को पोस्ट कर रहे हैं तो हमें पता है कि वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगा। जब हम किसी दूसरे मुल्क जा रहे हैं तो हमें पता है कि हमें एयर पे कोई सवारी मिल जाएगी।
इसी तरह जब हम कोई भी काम करना चाह रहे हैं, हम अखबार में ऐड दे रहे हैं किसी वैकेंसी के लिए, तो हमें पता है कि इसके नतीजे में हमें कुछ लेटर जो है वो आएंगे। तो इन्फ्लुएंसेस जो हैं वो हम हर वक्त कर रहे होते हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा इन्फ्लुएंसेस में करते वक्त गलती का इस्तेमाल भी है जो मिसकम्युनिकेशन का बायस बनती है। यानी आप किसी शख्स को देखें कि वो आपका कोई एम्प्लॉय जो है वो बाजू मेज़ पे रखे हुए सो रहा है, तो आप ये इन्फर कर सकते हैं कि बंदा जो है ये इज़ नॉट विलिंग टू डू हिज जॉब। बट before making this inference, it's important that you go into the matter. Maybe it's possible that the employee is feeling severe headache. हो सकता है उस वक्त एम्प्लॉय जो है वो शदीद सर में दर्द महसूस कर रहा है। तो इन्फ्लुएंसेस जो हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट कि इन्फ्लुएंसेस जो हैं हम हर वक्त कर रहे होते हैं, हम हकीकत को हर वक्त परसीव कर रहे हैं और इस जो हकीकत परसीव कर रहे हैं उससे हम कंक्लूजन जो है वो निकाल रहे हैं। इसके बगैर हमारी ज़िंदगी जो है वो नहीं बढ़ सकती, खासतौर पे हमारी जो वर्किंग लाइफ है वो नहीं आगे चल सकती अगर हम इन्फ्लुएंसेस नहीं कर रहे। इन्फ्लुएंसेस है कि जब आप अपने किसी सबऑर्डिनेट को कोई इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं तो आपको पता होता है कि वो उसको कैरी आउट करेगा, क्योंकि ये कॉमन सेंस के ऊपर है जो आप हर वक्त कर रहे होते हैं। लेकिन कभी कभी ये इन्फ्लुएंसेस जो है वो इस बात का इरादा करते हैं कि हम जरा हकीकत को दूसरे एंगल से जानने की भी कोशिश करें। तो परसेप्शन ऑफ रियलिटी में एब्स्ट्रैक्टिंग और इन्फ्लुएंसेस जो है वो बहुत ज़रूरी है। इसी तरह एक अगला बैरियर जो है दैट इज बैरियर इन्वॉल्विंग वैल्यूज, एटीट्यूड एटसेट्रा। बोथ पर्सनैलिटी एंड एटीट्यूड आर कॉम्प्लेक्स कॉग्निटिव प्रोसेस। यानी हमारी पर्सनैलिटी और एटीट्यूड ये बड़े ही कॉग्निटिव, यानी इनका ताल्लुक हमारे जहन के साथ है। इसमें बहुत ज़्यादा हम रिपीट नहीं जा सकते कि हम कॉग्निशन को डिस्कस करें। यानी इनका ताल्लुक यह है कि हमारे जहन में ये चल रहे होते हैं। शख्सियत, पर्सनैलिटी ये एक बहुत डीप टॉपिक है, हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे, हम सिर्फ एटीट्यूड के हवाले से करेंगे। लेकिन यहाँ ये बात जैसे कि मैंने कही कि ये बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है जो चल रहा होता है। लेकिन एटीट्यूड को समझना जो है वो ज़रूरी है कि एटीट्यूड जो है, अगर आपको कहा जाए कि फलां आदमी का एटीट्यूड जो है वो पॉजिटिव है या फलां आदमी का एटीट्यूड जो है वो नेगेटिव है, तो इससे एटीट्यूड से हम क्या मुराद लेंगे? एटीट्यूड से हम कहेंगे जी कि फलां आदमी का बिहेवियर जो है वो नहीं ठीक है। आइए देखिए कि इसको प्रिसाइजली हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो आई वाज सेइंग कि बोथ पर्सनैलिटी एंड एटीट्यूड आर कॉम्प्लेक्स कॉग्निटिव प्रोसेस। The difference is that personality usually is thought of as the whole person, whereas attitude may make up the personality. The term attitude describes people and explain their behavior. More precisely, an attitude can be defined as a persistent tendency to feel and behave in a particular way towards some object. यानी पर्सनैलिटी जो है वो तश्कील पाती है एटीट्यूड से। एटीट्यूड इंसान का रवैया है कि एक इंसान जो है उसका किसी भी चीज़ के बारे में क्या रवैया है, एटीट्यूड क्या है, कैसे वो किसी चीज़ को समझता है। यानी अगर आपको कहा जाए कि आपके किसी खास एम्प्लॉय का सपोज का एटीट्यूड जो है वो नेगेटिव है, तो एटीट्यूड का मतलब यह है कि उसका रवैया नेगेटिव है। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि दी एटीट्यूड ऑफ अ सर्टेन एम्प्लॉय इज नेगेटिव टुवर्ड्स द इवनिंग शिफ्ट। यानी इवनिंग शिफ्ट के हवाले से एक शख्स का रवैया जो है वो नेगेटिव है। अब व्हाई हिज बिहेवियर इज नेगेटिव? व्हाई? बिकॉज ही डिसलाइक दिस नाइट शिफ्ट। तो नाइट शिफ्ट को डिसलाइक करने के नतीजे में उस खास शख्स का रवैया जो है वो नेगेटिव है। तो हम उस नेगेटिव रवैये को कैसे पॉजिटिव कर सकते हैं? अगर हम उस शख्स को उस नाइट शिफ्ट से निकाल दें, उसकी जो वर्क असाइनमेंट है उससे उसको निकाल दें, तो उसका एटीट्यूड जो है वो चेंज हो जाएगा। तो ये जब एक शख्स के जिसके कोई एटीट्यूड की प्रॉब्लम होगी, तो उस एटीट्यूड की प्रॉब्लम के नतीजे में उसके लाइक्स और उसके डिसलाइक जो है वो उसके वे ऑफ कम्युनिकेशन पे अफेक्ट करेंगे, जिसके नतीजे में कम्युनिकेशन जो है वो मिसकम्युनिकेशन में तब्दील हो जाएगी और सर्टेन बैरियर्स जो है वो पैदा हो जाएंगे। इसी तरह हम कहते हैं कि a receiver's attitude towards a message can determine whether it is accepted or rejected. The effectiveness is influenced also by values, attitude, and opinion of the communicator. People react favorably when they receive agreeable message. Receivers' view of the information will affect their response. The response could be what the sender desire or just the opposite. तो हमारा जो मैसेज है उसके ऊपर वो डिपेंड करेगा कि हमारे मैसेज को एक रिसीवर जो है उसको कैसे लेता है। यानी रिसीवर हमारे मैसेज को क्या करेगा। मैंने आपको पहले भी इस बात का कहा था कि जब हम कोई मैसेज जो है उसको हम लिखते हैं तो उस मैसेज में सबसे अहम चीज़ ये होती है कि हमारा रिसीवर जो है वो उसको कैसे रिएक्ट जो है वो करेगा। हमारे मैसेज को सक्सेसफुल होने के लिए रिसीवर का रिएक्शन जो है वो बहुत ज़रूरी है। रिसीवर का रिएक्शन जो है वो कई एक बातों की बिना पे हो सकता है। यानी आप ये देखें कि जब आप कोई मैसेज जो है वो लिख रहे हैं और वो मैसेज जो है वो किसी रिसीवर ने रिसीव करके उस पर रिएक्ट करना है, तो जस्ट इमेजिन कि उसका रिएक्शन जो है वो किन किन बातों की बिना पे पॉजिटिव होगा और किन किन बातों की बिना पे वो नेगेटिव होगा। मसलन सबसे पहले आपके मैसेज के फेवरेबल होने के लिए रेसिपिएंट के यहाँ ज़रूरी है कि मैसेज का जो मैसेज में जो कोर आइडिया है वो उस रिसीवर के लिए फेवरेबल हो। अब ये बात मुमकिन नहीं है कि हम जब भी कोई बात कम्युनिकेट करें वो बात जो है वो रिसीवर के लिए फेवरेबल हो, उसकी किसी बेनिफिट का बायस बने। ये तो मुमकिन नहीं होता। आपने मिसाल के तौर पे आप कोई एडजस्टमेंट डिक्लाइन कर रहे हैं, कोई कंप्लेन आई थी, यू वेंट थ्रू द मैटर एंड यू फाउंड दैट इट्स नॉट द सेलर और इट्स नॉट यू हु आर एट फॉल्ट, इट इज़ द बायर हु इज़ एट फॉल्ट। तो इस सूरत में ये मुमकिन नहीं है कि आप वो एडजस्टमेंट जो मांगी गई है दें। तो इस सूरत में जो आप मैसेज लिख रहे होंगे वो मैसेज क्या ख्याल है, क्या रिसीवर के लिए फेवरेबल होगा? नहीं होगा। लेकिन उसको फेवरेबल बनाना ये आपके लिए ज़रूरी है। और कैसे बना सकते हैं कि आप अपने मैसेज को इस तरह अप्रोच करेंगे कि जिसके नतीजे में आपका रीडर जो है वो कन्विंस हो कि आप जो बात कहना चाह रहे हैं तो आप इनकार कर रहे हो उन फैक्ट्स की बिना पे कह रहे हैं कि जिनका वो भी इनकार है। तो यूँ आप अपने मैसेज को फेवरेबल मैसेज जो है वो बना रहे हैं। इसी तरह एक और बात जो बहुत अहम होती है किसी भी मैसेज को कामयाब करने के लिए वो ये है कि जो सेंडर्स क्रेडिबिलिटी है वो रिसीवर के यहाँ जाती है। यानी आप अगर किसी को कम्युनिकेट कर रहे हैं कोई मैसेज, तो आपकी क्रेडिबिलिटी एज अ सेंडर रिसीवर के यहाँ कैसी है? नहीं, आप क्लास में बैठे हुए हैं और कोई उस्ताद आया, तो उस्ताद ने आगे कोई गुफ्तगू जो है वो शुरू की है, लाजमी बात है आप उसको बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। लेकिन अगर आप ही की क्लास में से कोई शख्स उठ के क्लास को एड्रेस कर ले तो आप उसकी बात को नहीं सुनेंगे।
तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो सेंडर की क्रेडिबिलिटी है वो रीडर के यहाँ क्या है, ये ज़रूरी है कि मैसेज के सक्सेसफुल होने और ना सक्सेसफुल होने के लिए। तो जो चीज़ें डिपेंड करती हैं वो मैसेज के सक्सेसफुल होने के लिए उनमें सेंडर की क्रेडिबिलिटी भी एक अहमियत का हामिल है। इसी तरह बात ये है कि बाद लोग क्लोज माइंड होते हैं। हम क्लोज माइंड लोगों को डिफाइन करते हैं कि सम पीपल होल्ड रिजिड व्यूज ऑन सर्टेन सब्जेक्ट्स, दे मेंटेन देयर रिजिड व्यूज रिगार्डलेस ऑफ द सर्कमस्टेंसेस, सच ए क्लोज माइंडेड पर्सन इज वेरी डिफिकल्ट टू कम्युनिकेट विद। यानी बाद लोग जो हैं वो क्लोज माइंडेड हैं। किसी शख्स ने अगर किसी दूसरे शख्स के बारे में ये तय कर लिया कि वो उसकी बात नहीं सुनेगा, तो वो कितनी भी पॉजिटिव बात क्यों ना हो, वो बात दूसरा शख्स उस बात को कबूल करने के लिए तैयार नहीं होगा। तो ये क्लोज माइंडेडनेस जो है ये भी कम्युनिकेशन को रोकने के लिए एक बहुत बड़ा बात है। जिस तरह वैल्यूज मिसकम्युनिकेशन का बाइस, एटीट्यूड मिसकम्युनिकेशन का बाइस बन सकते हैं, इसी तरह वैल्यूज भी हैं। वैल्यूज हर कंट्री की अपनी वैल्यूज होती हैं, हर कल्चर की अपनी वैल्यूज होती हैं, हर शख्स की अपनी वैल्यू होती है। इंसान नफ्सियाती वजूद ही नहीं है, बल्कि वो उसकी एक मॉडल सेल्फ भी है, और हर शख्स जो है वो अपनी दुनिया में उस मॉडल सेल्फ के तहत काम करता है। तो इस मॉडल सेल्फ के नतीजे में जो हमारे वैल्यूज़ पैदा होती हैं वो बहुत हद तक डिटरमिन करती हैं कि हम किसी बात को कैसे लेते हैं। यानी हर कंट्री की तरह हर ऑर्गेनाइजेशन में भी सर्टेन वैल्यूज़ होती हैं, और उस वैल्यू के तहत ही उस ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन जो है वो हो रहा होता है। तो वैल्यूज़ के मुताबिक एक्ट करना, कम्युनिकेट करना, कम्युनिकेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और वैल्यूज़ से हट के कम्युनिकेट करना बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन का कहलाता है और मिसकम्युनिकेशन का बाइस बनता है। तो इसी तरह इन तमाम बातों के अलावा कुछ और बातें भी हैं। जैसे मिसाल के तौर पे हम ये कहते हैं कि बाज़ औक़ात मिसकम्युनिकेशन जो है वो इस वजह से होती है कि हम एक ऐसे एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं कि जो अंडर स्ट्रेस है। एनवायरमेंटल स्ट्रेस जो होते हैं वो मिसकम्युनिकेशन का बाइस बन जाते हैं। आपने ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर जो है उसमें पढ़ा है, और उसमें जॉब स्ट्रेस जो है उसको भी तफसील से पढ़ा होगा। आपने देखा कि स्ट्रेस जो है ये कितने मसाइल का बाइस बन सकता है। तो बेसिकली वो जो प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है स्ट्रेस, वो बैरियर्स ही हैं जो कम्युनिकेशन के बैरियर्स होते हैं। तो एनवायरमेंटल स्ट्रेस जो कोई भी शख्स किसी वर्क प्लेस पे फील कर रहा होता है वो कम्युनिकेशन बैरियर के तौर पे होता है। इसी तरह पर्सनल जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी मिसकम्युनिकेशन का बाइस बनती हैं कि व्हेन यू आर इन अ सर्टेन ग्लूमी मूड, जब आप किसी शुदा मूड में है, कोई खास आपकी पर्सनल प्रॉब्लम जो है वो आपके ऊपर अफेक्ट हुए हैं, तो तब भी आप कम्युनिकेट जो है वो प्रॉपर्ली नहीं कर पाएंगे। इस तरह पर्सनल है। इस तरह बाज़ कामों का स्ट्रेस होता है आपके ऊपर कि आप उस स्ट्रेस की वजह से नहीं कम्युनिकेट कर पाते। तो ये तमाम बातें जो हैं ये बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन है। तो आज हमने जो गुफ्तगू की है उसमें हमने देखा है कि कम्युनिकेशन जो है वो क्यों सक्सेसफुल नहीं हो पाता, क्यों मिसकम्युनिकेशन जो है वो पैदा हो जाता है, वो कौन कौन से बैरियर्स हैं। वो सिमेंटिक बैरियर्स हैं, वो फिजिकल बैरियर हैं, वो साइकोलॉजिकल बैरियर है, वो इमोशनल बैरियर है, हमारा रियलिटी का जो परसेप्शन है वो है, और इसी तरह हमारे जो एटीट्यूड्स हैं, हमारी वैल्यूज़ हैं, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो बैरियर्स के तौर पे कम्युनिकेशन को सक्सेसफुल होने से रोकते हैं। तो if we want to be successful communicator, we need to overcome all these barriers, whether they are physical barriers, whether they are emotional barrier, whether they are psychological barrier, whether it's because of the perception of reality or meaning, etc., whatever it is, we need to overcome all these barriers to make communication effective and successful. तो आज की इस गुफ्तगू से हम श्योर कि इन बैरियर्स के हवाले से आपने जाना होगा, यू लर्न कि कैसे हम इन बैरियर्स बेसिकली हैं क्या और हाउ कैन वी ओवरकम देम। तो अपनी इस गुफ्तगू को ख़त्म करते हैं और फिर इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात करेंगे। आज तक के लिए खुदा हाफ़िज़। सो फ्रेंड्स, हमारी वीडियो जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम चलते हैं अपनी रीडिंग की तरफ। आप लोगों को जैसे कि पता है हमारी रीडिंग ही साथ होती है हर टॉपिक के। तो फिर हम चलते हैं अपनी रीडिंग की तरफ। यस, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, हमारी रीडिंग के काफ़ी सारे पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। चलते हैं अपनी रीडिंग की तरफ। इंट्रोडक्शन में आ जाते हैं। ये देखिए इंट्रोडक्शन। People in
that is qualitative judgment and personal reactions. ठीक हो गया. The word man is denotative, father, prophet, brother are connotative. Some words have positive connotations in some context and negative meanings in others. ठीक है. For example, slim girl and slim chances. ठीक है. इसके बाद हम आगे चलते हैं. हमारे पास आ गया फिजिकल बैरियर्स. कम्युनिकेशन डज नॉट कंसिस्ट ऑफ वर्ड्स अलोन. Another set of barriers is caused by your own physical appearance, your audience or the context of the document or the presentation. Your ideas, however good and however skillfully imparted, are at the mercy of various potential physical barriers. ठीक है. For writing, there is a whole barrage of possible physical blocks. ठीक है. Jammed or jagged margins. ठीक है. Fingerprints or smudges, unclear photocopies, unreadable word processor printout, water or coffee, tea, sports, etc. ठीक है. For speaking, mumbling, not enunciating. ठीक है. Speaking too quickly, noises become of hissing, ventilation, blowing air conditioning, ringing telephones, slamming doors, etc. are different aspects of physical barriers. ठीक होगा. चल लेते हैं आगे. Psychological barriers and emotional barriers. Because of the changing world, everyone has his own concept of reality. Also, human beings' sensory perceptions, touch, sight, hearing, smell, and taste are limited, and each person's mental filter is unique. In our daily interaction with others, we make various abstractions, interfaces, and evaluations of the world around us. One possible psychological block is emotional. You may be emotionally blocked is you are announcing a new policy that whether you may become popular or unpopular. Similarly, you may have emotional barrier while making your first presentation or writing someone you dislike. ठीक है. So we have here perception barrier. The perceptual problem is that people think differently, so as a result their perception of reality is different. The material word provides a special reality to each individual. As a human beings, sensory perception, touch, sight, hearing, smell, taste are similar, and each person's mental filter is unique. We make various abstractions, interfaces, and evaluations of the world around us. सही हो गया. ठीक है. Abstracting, selecting some details and omitting others is a process called abstracting. On many occasions, abstracting is necessary. Differences in abstracting take place not only when persons describe events but also when they describe people and objects. However, you should be cautious about slanted statements. Slanting is unfair in factual reporting. When presenting some particular facts, you include your own biased ideas into it. You make a slanting statement. Try not to let personal preferences affect your factual reporting of information. Inferring. अच्छा, उसके बाद में हमारे पास है inferring. Conclusions made by reasoning from evidence are called inferences. We make assumptions and draw conclusions. Even though we are not able to immediately verify the evidence, some inferences are both necessary and desirable, others are risky, even dangerous. Necessary inferences. When we reach a foreign country, we are sure that we will be treated politely. When we post a letter, we infer that it will reach its destination. When we base our inferences on direct observation or on reasonable evidence, they are likely to be quite dependable. Conclusion we make about things we have not observed directly can often be untrue. So, as an intelligent communicator, we must realize
attitudes, and etc. Both personality and attitude are complex cognitive process. ठीक है. The difference is that personality usually is thought of as the whole person, whereas attitude may make up the personality. The term attitude describes people and explains their behavior. More precisely, an attitude can be defined as a persistent tendency to feel and behave in a particular way towards some object. For example, Naeem does not like night shift, so his attitude is negative towards his work assignment. ठीक हो गया. A receiver's attitude towards a message can determine whether it is accepted or rejected. The effectiveness is influenced also by the values, attitudes, and opinions of the communicators. People react favorably when they receive agreeable message. ठीक है. Receivers views of the information will affect their response. This response could be what the sender desire or just the opposite. Occasionally, people react according to their attitudes towards the situation rather than to the facts. ठीक है. Closed mind. Some people hold rigid views on certain subjects. They maintain their rigid views regardless of the circumstances. Such a closed-minded person is very difficult to communicate to. Okay, so our last topic. इसका सब टॉपिक है सबसे लास्ट, सेंडर्स क्रेडिबिलिटी. Credibility in the sender is important in getting a favorable reaction. Often people react more according their attitude towards the source of information than to the information itself. An effective communication builds credibility by writing and speaking in a fair and just manner, and by considering receiver's point of view. Other circumstances such as environmental stress, personal problems and sensitivity affect attitudes, opinions and responses. Okay जनाब, हमारा हो गया है ये वाला टॉपिक भी डन. अब मैं यहाँ पर डन लिख सकती हूँ क्योंकि यहाँ पर ओपन हो गया है MDP. ठीक है जनाब, हमने डन लिख लिया इस टॉपिक का. इस वीडियो में हमने पूरा किया बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, टॉपिक नंबर 5.